اور کتنا میرے صبر کا امتحان لوگے تم چاہتے کیا ہو آخر؟ پہلے ان سے پوچھیں یہ کیا چاہتی ہیں؟ دولت، عزت، شہرت، نام، یہ سب کچھ تو ہے ان کے پاس. اپنے بیٹے کا الزام میرے سر ڈال کے کیا چاہتی ہیں آپ؟ کہ تمہارا نام لے رہی ہے. کیوں اپنے گناہ کا ملبہ اپنے بھائی پہ ڈال رہے ہو تم؟ ان کا اصلی چہرہ دیکھ چکا ہوں میں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اور یہ سچ اب میں سب کو بتاؤں گا. میں کل پریس کانفرنس کر رہا ہوں. سارا سچ سب کے سامنے کھول دوں گا. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اتنی آسانی سے چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہوں. چائے کا اپنا ہی مزہ ہے. Nothing ever went wrong. You blamed Shehroz. لیکن علی اب صرف غلطی نہیں ہوئی، اس دفعہ گناہ ہوا ہے. اور اس بار آپ گناہگار کا ماتھا نہیں چوم سکتے. ہاں شہزاد، کیا اپڈیٹ ہے؟ جی سر، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا. جی ابھی وہ گھر پر ہیں اور میں خود صرف حادثہ صرف میری بیٹی کے ساتھ ہی پیش آیا. اس کے ساتھ اگر کوئی لڑکی گئی تھی تو اسے کچھ نہیں ہوا. وہ کہاں گئی؟ یہ بات صحیح کہی آپ نے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ زحمت دوں. تھینک یو سر. لیکن جب تک یہ کیس سالو نہیں ہو جاتا، آپ یا آپ کا فیملی کا کوئی ممبر آؤٹ آف ٹاؤن یا فیملی ٹرپ یورپ کہیں نہیں جا سکتا. You know, it's always been about you. راہم کی گریڈز کیسے ہیں، راہم کی سکسیس دیکھو، راہم کا بابا کا بزنس کو ہینڈل کرنا دیکھو. What about me? ہاں؟ شہروز، یہ راحت اور سنی نہیں آئے بہت دن سے. مجھے ڈر ہے کہیں پولیس ان کو اپنی انکوائری میں شامل نہ کرے. کیا انہیں کیوں شامل کریں گی؟ وہ تو میرے دوست ہیں ماما. کیونکہ پولیس شامل کرتی ہے. جب پورے اسٹاف کی چھٹی ہوگی نا تب آ کے مل لینا. جاؤ جاؤ، ابھی منہ نہیں دیکھے ادھر جاؤ. جا رہا ہوں. ہیلو، کیسی ہو؟ یعنی سیٹرڈے کو سر راہم کی انگیجمنٹ پارٹی ہے، اور انگیجمنٹ پارٹی کے ساتھ ہی نواز گروپ اینڈ سنز اپنا ڈریم پروجیکٹ بھی اناؤنس کر رہے ہیں. تو اس خوشی کے موقع پہ مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمام امپلائیز کو بونس دیا جائے گا. اسے ہارنا نہیں ہوتا، اسے جیتنا کہتے ہیں. جنگ میں جو بھی مد مقابل ہوتا ہے نا، وہ اپنا نہیں ہوتا. Come on بابا، it's just a game. دنیا میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے، اور جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے. بس Now open them. Rahim, it's beautiful.
کہ اب یا تو پوری طرح سے اسی کوشش میں ہے کہ اس کیس میں شہروز کا نام کسی جگہ پر نہ آئے اور سارے کا سارا الزام راہمن پر آ جائے، تو اس لیے جب ایمن ہاسپٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر آفیہ بھی آ جاتی ہے اور اسے اس بات یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ ایمن سے کہتے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو اور راہمن کو سزا دلانے میں ہی تمہارا کوشش کروں گی اور تمہیں سب کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہو اور نہ تم کمزور ہو۔ تو ایمن آفیہ کی باتیں سن کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ اسے جواب دیتی ہے کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اور تم کیوں راہمن کے ساتھ مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ اور دوسری طرف جمال تو اس کوشش میں ہے کہ ایمن کے مجرموں کو سزا دی جائے، تو اس لیے وہ ایمن کے گھر آتی ہے اور وہ اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ ایمن کو پولیس اسٹیشن لے کر جانا ہوگا تاکہ وہ سب کے سامنے اپنی ریکارڈنگ بیان سکے، تاکہ وہ بتا سکے کہ اس کے اس حالت کا کون ہی ذمہ دار بننے والا ہے۔ تو وہ جا کر جمال صاحب کو جواب دیتا ہے کہ ہم یہاں پر جتنی بھی کوشش کر لے اور وہ تو بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ ہے اور ایمن کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح جمال بھی اپنی ماموں کو یقین دلاتا ہے کہ اب یا تو پوری طرح سے اسی کوشش میں ہے کہ اس کیس میں شہروز کا نام کسی جگہ پر نہ آئے اور سارے کا سارا الزام راہمن پر آ جائے، تو اس لیے جب ایمن ہاسپٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر آفیہ بھی آ جاتی ہے اور اسے اس بات یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ ایمن سے کہتے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو اور راہمن کو سزا دلانے میں ہی تمہارا کوشش کروں گی اور تمہیں سب کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہو اور نہ تم کمزور ہو۔ تو ایمن آفیہ کی باتیں سن کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ اسے جواب دیتی ہے کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اور تم کیوں راہمن کے ساتھ مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ اور دوسری طرف جمال تو اس کوشش میں ہے کہ ایمن کے مجرموں کو سزا دی جائے، تو اس لیے وہ ایمن کے گھر آتی ہے اور وہ اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ ایمن کو پولیس اسٹیشن لے کر جانا ہوگا تاکہ وہ سب کے سامنے اپنی ریکارڈنگ بیان سکے، تاکہ وہ بتا سکے کہ اس کے اس حالت کا کون ہی ذمہ دار بننے والا ہے۔ تو وہ جا کر جمال صاحب کو جواب دیتا ہے کہ ہم یہاں پر جتنی بھی کوشش کر لے اور وہ تو بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ ہے اور ایمن کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح جمال بھی اپنی ماموں کو یقین دلاتا ہے کہ اب یا تو پوری طرح سے اسی کوشش میں ہے کہ اس کیس میں شہروز کا نام کسی جگہ پر نہ آئے اور سارے کا سارا الزام راہمن پر آ جائے، تو اس لیے جب ایمن ہاسپٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر آفیہ بھی آ جاتی ہے اور اسے اس بات یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ ایمن سے کہتے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو اور راہمن کو سزا دلانے میں ہی تمہارا کوشش کروں گی اور تمہیں سب کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہو اور نہ تم کمزور ہو۔ تو ایمن آفیہ کی باتیں سن کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ اسے جواب دیتی ہے کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اور تم کیوں راہمن کے ساتھ مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ اور دوسری طرف جمال تو اس کوشش میں ہے کہ ایمن کے مجرموں کو سزا دی جائے، تو اس لیے وہ ایمن کے گھر آتی ہے اور وہ اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ ایمن کو پولیس اسٹیشن لے کر جانا ہوگا تاکہ وہ سب کے سامنے اپنی ریکارڈنگ بیان سکے، تاکہ وہ بتا سکے کہ اس کے اس حالت کا کون ہی ذمہ دار بننے والا ہے۔ تو وہ جا کر جمال صاحب کو جواب دیتا ہے کہ ہم یہاں پر جتنی بھی کوشش کر لے اور وہ تو بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ ہے اور ایمن کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح جمال بھی اپنی ماموں کو یقین دلاتا ہے کہ اب یا تو پوری طرح سے اسی کوشش میں ہے کہ اس کیس میں شہروز کا نام کسی جگہ پر نہ آئے اور سارے کا سارا الزام راہمن پر آ جائے، تو اس لیے جب ایمن ہاسپٹل میں جاتی ہے تو وہاں پر آفیہ بھی آ جاتی ہے اور اسے اس بات یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ ایمن سے کہتے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو اور راہمن کو سزا دلانے میں ہی تمہارا کوشش کروں گی اور تمہیں سب کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا
कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है
कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा
कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है
कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा
होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है
कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो एमन आफिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि एमन के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो इसलिए वो एमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि एमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और एमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि अब या तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब एमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आफिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो एमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा
कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा ताकि वो सबके सामने अपनी रिकॉर्डिंग बयान सके, ताकि वो बता सके कि उसके उस हालत का कौन ही जिम्मेदार बनने वाला है। तो वो जाकर जमाल साहब को जवाब देता है कि हम यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर ले और वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग है और ऐमन को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जमाल भी अपनी मामू को यकीन दिलाता है कि आपिया तो पूरी तरह से इसी कोशिश में है कि इस केस में शहरोज का नाम किसी जगह पर ना आए और सारे का सारा इल्जाम राहिमन पर आ जाए। तो इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर आपिया भी आ जाती है और उसे इस बात यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है। तो वो ऐमन से कहते कि तुम अपने आप को मजबूत करो और राहिमन को सजा दिलाने में मैं ही तुम्हारा कोशिश करूंगी और तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम किसी के आगे झुकने वाला नहीं हो और ना तुम कमजोर हो। तो ऐमन आपिया की बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो उसे जवाब देती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम क्यों राहिमन के साथ मुखालिफत क्यों कर रहे हो। और दूसरी तरफ जमाल तो इस कोशिश में है कि ऐमन के मुजरिमों को सजा दी जाए, तो इसलिए वो ऐमन के घर आती है और वो अपने मामू से कहता है कि ऐमन को पुलिस स्टेशन